Hello people, welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher. I hope you doing good. So भाई और बहनों, आज हम लोग करने वाले हैं CBSE Additional Practice Questions along with Solution 2023. तो ये CBSE के द्वारा ही आप लोगों को questions दिए गए हैं, which is the Additional Practice Paper, जिससे कि आप लोग एक भी question miss ना करो in your paper. देखते हैं किस तरीके से questions और दिए गए हैं and how we can solve those questions. So let's begin. But उससे पहले, you all know we will go through a positive motivational dose of the day. Strive for progress, not for perfection. Oh, that's deep. That's deep. So मतलब progress की बात पे चलो भाई, perfection झक मार के तुम्हारे पास आएगी. So don't just waste your time कि भाई perfection यानी चाहिए और आगे का रास्ता तुम भूल जाओ. So please just focus on the progress and perfection will come along with it. चलिए. So starting up with section A, which will be a 1 mark questions, ठीक है? तो 1 mark question आप लोगों को पता है MCQ based questions आते हैं, assertion reason based questions आते हैं. So get yourself ready to solve some chemical locha with your teacher, Rachita ma'am. चले? All ready? All set to go? Ready, steady, po. This is your question number 1. Let's read it. An example of liquid metal and a liquid non-metal is. देखो, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है तो वो आपसे रिस्पेक्टिवली के बारे बात करता है. रिस्पेक्टिवली मतलब सीक्वेंस में आपको आंसर करना है. तो अगर आपसे लिक्विड मेटल पहले पूछा है तो उसका एग्जाम्पल एंड कॉमा लिक्विड नॉन मेटल. सो ये बाय डिफॉल्ट वाली सिचुएशन होती है, रिस्पेक्टिवली. सो काइंडली गिव सम रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिवली. या ए गैलियम मर्क्यूरी, B mercury bromine, C mercury chlorine and D bromine sulfur. So what do you think? सबसे पहले तो हमें लिक्विड मेटल देना है. अब आप सोचो कि लिक्विड मेटल गैलियम होता है कि मर्क्यूरी होता है. Come on. Mercury? Yes, if your answer is mercury, then yes, you're absolutely right. And non-metal के अंदर liquid होता है bromine. तो ये exceptions है of metals and non-metals, जहाँ पे metal is one of those exceptional, mercury is one of those exceptional metal which is liquid at room temperature, and bromine भी एक exceptional non-metal है which is liquid. इसका color होता है yellowish orange, orangish yellow. धीरे धीरे air के presence में इसका color भी dark होता जाता है, turns into a brown color. Okay, so yes, absolutely option B is your fatafati answer. चले आगे. I hope till here all clear. Question number 2. Which of the following statement is true about diffusion? आपको क्या लगता है diffusion के लिए कौन सा statement एकदम कड़क है? A. It occurs only in gases. B. It is faster in solids than in liquids. C. It is the movement of particles from a region of high concentration to a low concentration. And D. It can only happen in vacuum. So क्या बोले public? क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ. What is the following statement which is true about diffusion? देखो भाई, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होना ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर. तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गैसेस के अंदर हो. गैसेस पानी के अंदर भी डिफ्यूज़ हो सकता है, गैसेस गैसेस में डिफ्यूज़ हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. इट हैपन्स ओनली इन वैक्यूम, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा. इट्स नॉट टेक्निकली राइट. इट्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इट्स लिक्विड. ओ तेरे की, सॉलिड्स में डिफ्यूजन फास्टर होगा? नहीं, ये तो सबसे गलत है. सॉलिड्स में डिफ्यूजन सबसे लीस्ट होता है, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सबसे कम होता है. लिक्विड्स का उससे ज़्यादा, गैसेस का सबसे ज़्यादा. इन दैट केस बी इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर. ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, तो बचा का भाई ऑप्शन सी. सो यस, सी इज एब्सोल्युटली perfect answer. तो क्या बोल रहा है सी के अंदर? It's a movement of particles from a region of high to lower concentration. Absolutely. किचन में क्या बन रहा है? मैगी, पाव भाजी,
बटर चिकन। अच्छा, जो भी किचन में आपके बन रहा है, मे बी टी, कॉफ़ी और एनीथिंग, उसकी खुशबू आप तक आती है। सो इट्स कमिंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू अ लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। तो पार्टिकल्स फ्लो इस तरीके से करते हैं, जो आप लोग ऑस्मोसिस में पढ़ते हो ना बायो में, लगभग वैसा ही, बट वहाँ पे मेम्ब्रेन होता है एंड देयर वर अदर स्टफ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन इट, बट हियर इट्स अ काइंड ऑफ सेम कॉन्सेप्ट। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे पार्टिकल्स मूव करते हैं एंड दे इंटरमिक्स इनटू ईच अदर, इसीलिए वो आपकी नोज तक आकर आपको खुशबू देते हैं, मे बी खुशबू, बदबू, व्हाटएवर इट इज। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडरगो सब्लिमेशन। पहले तो ये सोचो सब्लिमेशन होता क्या है। अगर सब्लिमेशन याद है तो ये क्वेश्चन हम लोग क्रैक कर लोगे। सब्लिमेशन बोले तो सॉलिड का सीधा वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो लिक्विड स्टेट गायब होता है, इसके अंदर दो स्टेट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। सब्लिमेशन is when solid changes into gaseous state without changing into liquid state या directly, ये सब्लिमेशन होता है। अब यहाँ पे सब्लिमेबल सॉलिड्स कौन कौन से हैं? इज दैट आइस, इज दैट अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और सॉल्ट। सॉल्ट कभी सब्लाइम नहीं होता है। अगर सॉल्ट सब्लिमेशन करने लगा ना भाई, तो ये दुनिया सब उथल पुथल हो जाएगी। सोच के देखो, अगर सॉल्ट सब्लाइम कर रहा है, हमने खाना बनाते टाइम नमक डाला है ना, एंड हमारा खाना गर्म हुआ और गर्म होते ही वो सॉलिड में था और वेपराइज हो गया, मतलब खाना बिना नमक का मिलेगा। या फिर डब्बे में सॉल्ट है, खुला छोड़ दिया, वेपराइज हो गया, कुछ नहीं बचा आपके पास। तो इट्स नॉट समथिंग विच वर्क्स लाइक दैट। सो इसीलिए सॉल्ट सब्लिमेबल नहीं है। सिमिलरली आइस तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, पानी पीते हैं यार हम लोग। सो बचा कौन? ऑप्शन 2 एंड 3। अमोनियम क्लोराइड वाइट कलर का सॉल्ट होता है विच हैज़ अ सब्लिमेबल प्रॉपर्टी। ये सॉलिड से लिक्विड में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगा, सॉलिड से सीधा वेपर्स में जाता है एंड वेपर्स से ये सॉलिड में भी आ सकता है। उसके उल्टा प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। डी सब्लिमेशन कई कई बुक्स में लिखा है, बट द मोर करेक्ट एंड टेक्निकल टर्म इज डिपोजिशन। सो वी विल गो विद द टर्म कॉल्ड डिपोजिशन विच इज रिवर्स, उल्टा ऑफ सब्लिमेशन। नाउ अमोनियम क्लोराइड 2 and 3, कैम्फरस कपूर, हम लोग सब जानते हैं कपूर के बारे में। सो येस, इट इज 2 and 3, ऑप्शन डी एज योर answer. So if you get option D as an answer, tap your back, be proud of yourself. On that note, next question पे चलते हैं, question number 4। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? The particles in a colloid are, okay, अब ये कोलॉइड्स के बारे में बात करें। कोलॉइड्स का डेफिनेशन सोचो, क्या होते थे कोलॉइड्स? क्या सस्पेंशन होता था, सोल्यूशन होता था? कोलॉइड्स क्या तीनों एक जैसे होते थे? तीनों में क्या डिफरेंस होता था? इफ दे आर डिफरेंट, सोच के देखो एंड देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। पार्टिकल्स इन कोलॉइड्स आर लार्जर देन पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, इज दैट सो? बी, ऑफ द सेम साइज एज द पार्टिकल्स in a solution, and C, smaller than particles in suspension, or D, gaseous in nature। क्या सारे colloids gaseous होते हैं? फिर तो मिल्क भी gaseous होना चाहिए था। कहाँ कहाँ जाते तुम मिल्क लेने? ब्लड गैसेस होना चाहिए था। आयो, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच सेज कि भाई ऑप्शन डी तो कतई नहीं हो सकता है, इसको तो भूल जाओ। नाउ टॉकिंग अबाउट पार्टिकल साइज, अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें तो सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। कोलॉइड्स के अंदर पार्टिकल साइज होता है बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। एंड इन केस ऑफ सस्पेंशंस की अगर हम लोग बात करें तो सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो इस हिसाब से कोलॉइड्स का जो पार्टिकल साइज होता है वो सस्पेंशन से छोटू होता है, थोड़ा छोटू होता है। सो स्मॉलर देन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, absolutely yes, and that makes option C as your perfect bang on answer. Clear है boss? I hope it's clear. These are the additional practice questions जो कि CBSE ने दिए हैं, so it's very very important for you to practice them। और हो सकता है यहाँ से सीधा उठ के आपके question paper में भी आ जाए। चलते हैं on that positive note, moving on to our question chocolate fate। So which of the following is a colloid? Jelly belly,
जेली और whipped cream, distilled water और lemonade? यहाँ पे कितने लोगों को whipped cream पसंद है? Anyone here who loves whipped cream? I love whipped cream. तो जब भी cold coffee के ऊपर whipped cream आता है ना, I'm the first one. तो मतलब I'll eat. मेरे आसपास friends भी होते हैं ना, उनके वाले glass से भी I eat that whipped cream वाला part. Oh, it's yum. Okay. Jelly, whipped cream, distilled water, lemonade. इनमें से कौन सा example colloid का है? Come on. A, only one. B, only 1 and 2 means jelly and whipped cream. C, only lemonade. And D, 2 and 3 whipped cream and distilled water. देखो, डिस्टिल वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस बोले तो वो मिक्सचर की कैटेगरी में ही नहीं है, और अगर वो मिक्सचर की कैटेगरी में नहीं है तो ना ही हम उसको हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस में कंसिडर कर सकते हैं, तो ना ही वो सस्पेंशन होंगे, ना कोलॉइड्स होंगे, ना सोल्यूशंस होंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ मिक्सचर, इट्स अ प्योर सब्सटेंस गाइस. तो इसीलिए इसको तो बिल्कुल हटा दो. थर्ड अगर हट जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते हो. फोर्थ, लेमनेड, इट्स अ मिक्सचर but it's a homogeneous mixture. In that case fourth भी हमारा गया. If fourth is gone then option C is also gone. Isn't that amazing? Now one पे चलते हैं. jelly अगर colloid है then you have also learned about whipped cream which is also the colloid. whipped cream हो गया, shaving cream हो गया, ये सब colloids में आते हैं, which is made from dispersed phase and dispersion medium, and that's why option B is your फटाफटी answer. समझ गए हैं ना? Okay, on that note, moving on to our next question. आई होप सब सही चल रहा है, एकदम फोकस में है आप लोग. एग्जाम्स आने वाले भाइयों और बहनों. सो येस, फोकस इज रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड एज मच एज यू कैन डू. क्योंकि देखो, पढ़ाई तुम लोग कर चुके हो, जितना आप लोगों को पढ़ना था यू हैव डन इट. अभी क्वेश्चंस की बारी है. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एप्लीकेशन सीखोगे. इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है ना, यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट. तुम्हें ये तो समझ में आ जाएगा कि अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके साथ डील कैसे करना है. चले, ऑन दैट नोट, क्वेश्चन. द केमिकल फॉर्मूला H2O रिप्रेजेंट्स, वाटर से रिलेटेड है, H2O फॉर्मूला से रिलेटेड है. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको क्या पढ़ोगे आप लोग? 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen in water. H2O के अंदर क्या हमारे पास 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन का है. 1 atom of hydrogen and 2 atoms of oxygen, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen, 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen. क्या लगता है आपको? What do you think? देखो, मॉलिक्यूल ये पूरा एक मॉलिक्यूल है. H2O की बात करें, itself it's a molecule, क्योंकि आप मॉलिक्यूल 2 तरह के पढ़ के आए हो. एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, है ना. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में आप लोग पढ़ के आते हो कि सेम एलिमेंट, सेम एटम कंबाइन होगा. H2, I2, Cl2, Br2, S8, P4, O3 एंड सो ऑन. वाटर की बात करें तो itself it's a molecule only, but it's a molecule of compound. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं? जहाँ पे डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूल हियर, इट्स एन एटम ओनली. सो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज वाटर इटसेल्फ इज अ मॉलिक्यूल, वो पूरा एक मॉलिक्यूल है, और वी कैन से इट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. सो ये तो गलत हुआ. 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं. अगर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होता ना, तो इसका नाम होता हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसका क्या फॉर्मूला का नाम होता? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो ये वाटर के लिए तो बिल्कुल हम बात नहीं कर रहे ऑप्शन डी में. Now moving on to B, 1 atom of hydrogen, 2 atoms of oxygen. No, नहीं, ये 1 कहाँ है? मुझे तो 2 atoms of hydrogen दिख रहे हैं, 1 atom of oxygen दिख रहा है. That's why option A is your perfect answer. I hope you understood कैसे पढ़ते हैं हम लोग किसी भी कंपाउंड को, किसी भी फॉर्मूला को हम कैसे पढ़ते हैं. अब जैसे कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे इट इज मेड ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना? ओके.
Next question, which of the following is not a diatomic molecule? देखो तुम्हें not यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल लेटर में दिया है, जिससे कि आप भूलो ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि यही आप लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हो. नॉट अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. अभी CBSE वालों का धन्यवाद करो कि उन लोगों ने तुम्हें फॉर्मूला एज अ सिंबल दे दिया है, वरना यूजुअली हम लोग राइटिंग स्पेलिंग में देते हैं, तो उसमें अगर आपको फॉर्मूला बनाना आता है तो आप ये क्वेश्चन कर जाते. अगर आपको नहीं पता एग्जिस्टेंस कैसे होता है तो आप ये नहीं कर पाते. ठीक है, तो धन्यवाद करो CBSE का. सो O2 N2 NeH2 आपको एकदम थाली में परोस दिया है उसने आंसर. वो पूछ रहा है विच इज नॉट अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. यहाँ पे क्या ऑक्सीजन 2 एटम से नहीं बन रहा है? 2 एटम से तो बनता है, दैट्स अ गैसियस स्टेट. सो ऑब्वियसली ये तो भैया आपके लिए डायटोमिक है ना, बिकॉज एटॉमिसिटी कितनी है? 2. नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी है? 2. दिस इज ऑल्सो डायटोमिक. हाइड्रोजन के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हो? H2 रादर देन H, क्योंकि H एज एन एटम एग्जिस्ट नहीं करता, ये मोनोएटॉमिक नहीं है, इसकी एटॉमिसिटी होती है 2, तो ये भी आपका डायटोमिक है. अब पूछ रहा है विच इज नॉट डायटोमिक. नियॉन, वेरी क्लियरली विजिबल. नियॉन क्या है? नियॉन ऐसा ब्रह्मचारी एलिमेंट है विच लव्स टू स्टे सिंगल, नेवर रेडी टू गेट मिंगल, और उसको रिलेशनशिप के भसड़ में नहीं पड़ना है भाई. कोई रिलेशनशिप नहीं खेलना है, वो अकेले खुश है, तो उन्हें हम खुश रहने देंगे. सो दे आर वेरी मच स्टेबल इन देयर ओन फॉर्म. मोनोएटॉमिक फॉर्म में वो बहुत खुश है, क्योंकि दे आर वेरी स्टेबल. स्टेबल क्यों है? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम कंप्लीट है, एंड दैट्स वाई दे ऑलवेज बी मोनोएटॉमिक इन स्टेट. आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा नियॉन 2 नियॉन 3 कि आपको नियॉन नियॉन बॉन्ड बनाता हुआ मिल जाए. ऐसी सिचुएशंस आपको नहीं मिलती. Clear it, boss? Okay, chuck the fate. On that note, option C is your perfect answer. Next question पे चलते हैं. Assertion reason. अब सुनो, कई बच्चे बोलते हैं कि मैम assertion reason questions हमें सॉल्व करने नहीं आते, हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं. तो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर फॉर यू कि आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे, असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ो. एज अ स्टेटमेंट देखो कि क्या जो भी उसने लिखा है वो डज इट मेक सेंस और नॉट, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है. फिर रीजन एज अ स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट को देखो और देखो कि क्या ये सही बोल रहा है, कुछ मतलब इसका मतलब भी निकलता है कि नहीं. इफ यस, इफ इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट ठीक है, इफ इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट आपको आंसर मिल जाएगा. अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ही सच है, तो उसके बाद आती है बारी एक्सप्लेनेशन की. क्या रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, क्या उन दोनों में कोई कनेक्शन है भी या नहीं. देन यू कैन मूव टू ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. तुम्हारे आंसर को आप उसी हिसाब से चूज कर सकते हो. ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज एटम्स, एंड स्टेटमेंट आर कहता है द केटायंस आर न्यूट्रल बाय नेचर. क्या केटायंस न्यूट्रल होते हैं? इज इट केटायंस? इसी नाम में आ रहा है आयंस. आयंस होते हैं कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जिसमें केटायंस इज अ पॉजिटिव वन, नॉट अ न्यूट्रल. भाई ये तो एकदम फॉल्स. अगर ये फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो है ही है. ठीक है, तो दैट मेक्स ऑप्शन सी एज योर परफेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी इज योर आंसर, और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है भी. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जिसके अंदर प्रॉपर्टीज रहती है वो एटम है, बिल्कुल है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करता है, अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स है दे रिटेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टी, एंड दैट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच रिटेन केमिकल प्रॉपर्टी, एंड दैट्स द रीजन वी कॉल देम एज एटम्स. या ओके, ऑन दैट नोट मूविंग ऑन टू सेक्शन बी, 2 मार्क क्वेश्चन. 2 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई और बहनों, अपना पेन पेपर उठा के बैठ जाइए. तो अगर लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कीवर्ड ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, तो क्वेश्चन लिख के उसके कीवर्ड को लिख लो, जिससे कि जब भी आप आंसर लिखो आप कभी भी वो कीवर्ड मिस ना करें. चले,
Ready? Chak de fatte. Moving on. Section B, 2 mark question. Calculate the formula mass of sodium carbonate decahydrated. अभी ना दिमाग घूम रहा होगा, अरे यार ये डॉट क्या है, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को कैसे हम लोग फॉर्मूला मास में कैलकुलेट करेंगे. तो थम जाओ, इतना परेशान मत हो, बिकॉज आई एम हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू. तो देखो, इस पूरे इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट. डेका बोले तो 10 है ना, डेका बोले तो 10, हाइड्रेट बोले तो वाटर. सोडियम कार्बोनेट के बारे में आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है. इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदे, है ना, सुना होगा आप लोगों ने. तो ये फॉर्मूला एक्चुअली वॉशिंग सोडा का है. अब आपको क्या बोला है, इससे फॉर्मूला मास निकालने के लिए. फॉर्मूला मास अब बिल्कुल मॉलिक्यूलर मासेस जैसे निकालते हो, बस आपको इसके लिए हर एक एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए. तो कई बार बच्चों को लगता है क्या हम लोग को एटॉमिक मासेस क्वेश्चन में दिए गए होंगे. मे और मे नॉट बी, हो सकता है, हो नहीं भी सकता है. तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ एटलीस्ट 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक एटॉमिक मासेस को याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एटॉमिक मासेस नहीं दिए हैं. सो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U, ठीक है. कार्बन का एटॉमिक मास है 12U. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U. हाइड्रोजन का है 1U. यही सब आपको काम में आएंगे. दैट्स इट. अब कैसे करना है ये भी देखो. 2 सोडियम एटम है, एक सोडियम एटम का मास 23, तो 2 का कितना होगा, 2 × 23, है ना, प्लस मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास. जब भी हम निकालते हैं, हम सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं, सम करते हैं. सो यहाँ पे 23 सोडियम का सॉर्टेड है. कार्बन का एक एटम है जिसका मास है 12, सो 1 × 12, प्लस ऑक्सीजन के यहाँ 3 है. हम इसको भी मिक्स नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, एक एटम का मास 16 है, तो 3 का कितना होगा, 3 × 16, प्लस अब इसी के अंदर हम इसको भी ऐड करेंगे. कैसे, 10 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बट 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 10, सो इट विल बी 20 हाइड्रोजन्स. एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, तो 20 का कितना होगा, 20 × 1 प्लस 10 ऑक्सीजन हो गए, बिकॉज दिस 10 इज मल्टीप्लाइड विद ऑक्सीजन ऑल्सो. यहाँ पे एक है एटम, तो इसीलिए 10 × 1 विच इज 10. एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 है, तो 10 का कितना होगा, 10 × 16 विच इज 160, isn't it? अब इसको कैलकुलेट करो. 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 20 प्लस 160, जितना भी आएगा डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. Come on, I hope you understood. हमने हर एक एटम के एटॉमिक मास को प्लस करा है, ऐड करा है. सोडियम के 2 एटम, एक एटम का मास 23 होता है, तो 2 का कितना हुआ, 2 × 23. कार्बन का एक एटम है जिसका मास 12 है. ऑक्सीजन के इस वाले कंपाउंड में 3 एटम्स हैं जिसका हमने लिख दिया है 3 × 16. चाहे तो आप ये सब मिला के एक साथ लिख सकते थे, बट क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैंने वाटर को बिल्कुल सेपरेट रखा है. देन प्लस 20 हाइड्रोजन्स हो गए, 10 इज मल्टीप्लाइड विद 2, सो यहाँ पे 20 हाइड्रोजन्स. एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 20 का कितना हुआ, 20 × 1 प्लस ऑक्सीजन आर 10, बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड. एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, सो 10 का कितना हुआ, 16 × 10. Clear boss? Let's see if you're getting the right answer, which is 286 U. अगर यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा, ध्यान रखना. सेम एज इन मैथ्स, जैसे मैथ्स और फिजिक्स में होता है, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स जाएगा, यहाँ पे भी यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स जाएगा. Clear boss? I hope you all are getting this answer. 286 U. Do let me know in the chat box. आया कि नहीं, ठीक है? Okay. Now moving on to section C. 3 मार्क का क्वेश्चन है, so दिल थाम के बैठिए. Question on screen. How can we convert saturated solution into unsaturated by heating?
अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले तो ये सोचो कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, फिर कन्वर्जन की बातें करेंगे। सैचुरेटेड बोले तो यार आई एम सो सैचुरेटेड, आई कैन नॉट टेक थिंग्स इन माइंड, अभी ना बस भाई हो चुका है, अब नहीं हो सकता इसके आगे, मतलब एक लिमिट आ चुकी है, अब इससे ज़्यादा ना हो पाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं जहाँ पे हम और सोल्यूट गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसका लिमिट पहुंच चुका है, भाई अब और सोल्यूट में डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा, सो नाउ आई एम सैचुरेटेड। So saturated बोले तो when no more solute can be dissolved in a given solvent at a particular temperature. Unsaturated बोले तो अभी आप डाल रहे हो solute, डिसॉल्व हो रहा है, सोल्यूट सॉल्वेंट में डाला, डिसॉल्व हो रहा है। सो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जब हम जितना सोल्यूट डाल रहे हैं और वो डिसॉल्व होता जा रहा है इन अ गिवन सॉल्वेंट, तो उस समय हम कहते हैं उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें मिल जाता है तो उसको अगर हमें अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो हम वापस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो इसके दो तरीके हैं, सिंपल टू वेज। वन इज कि आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट कर दो। अगर आप हीट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें आई हैव 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 1 लीटर वाटर है और इसके अंदर मैंने 5 स्पून शुगर डाला है, 4 स्पून शुगर तक ये डिसॉल्व हो रहा था, है ना, 1 लीटर वाटर में 4 स्पून ऑफ शुगर तक ये डिसॉल्व हो रहा था। 5वां स्पून डालते ही यहाँ पे सेटल होने लग गया शुगर, दैट मीन्स ये मेरे लिए अभी सैचुरेटेड बन चुका है क्योंकि जितना सोल्यूट अब मैं डाल रही हूँ वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। फाइन, तो अब क्योंकि ये सैचुरेटेड बन चुका है, क्यों ना अगर मैं इसको हीट करूं, इफ आई हीट दिस, तो ये शुगर पार्टिकल्स जो है ये डिसॉल्व होने लगेंगे। क्यों होंगे डिसॉल्व? टेम्परेचर बढ़ते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही क्या होगा, देयर वुड बी मोर स्पेस क्रिएटेड, मूवमेंट होने लगेगा पार्टिकल्स का, स्पेस क्रिएट होने लगेगा, and that leads to solubility. टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, सॉल्युबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो टेम्परेचर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। सो अब once I've heated it, हीट करने पर that will be turned into unsaturated solution। ये जो सिंबल मैंने लिखा है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड डेल्टा और इसका मतलब होता है हीट। या तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है पानी मिला दो, add more solvent to it। दो तरीके हो सकते हैं, अगर आप इसमें और पानी मिला दोगे तो 5 spoons of sugar will no more be in a situation of saturated। आपने पानी और मिलाया, उसको और जगह मिल गई डिसॉल्व होने के लिए, राइट। सो ईदर बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट और बाय हीटिंग इट, आप उसमें से कोई भी एक लिखो, बाय हीटिंग लिखोगे तो इट वुड बी बेटर टू एक्सप्लेन योर आंसर। तो सबसे पहले समझाओ कि भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या होता है, फिर बताओ कि सैचुरेटेड को आप अनसैचुरेटेड कैसे बना सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे उससे क्वेश्चन में दिया है ऑन हीटिंग या बाय हीटिंग, तो हम सिर्फ हीटिंग वाले कैटेगरी पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पे नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हीट करने पे दे गेन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बाद वो वाइब्रेशंस होते हैं एंड दे ट्राई टू मूव अवे, जिसकी वजह से स्पेस बनता है एंड दैट accommodate more solute particles in this case, and hence we convert saturated to unsaturated. Clear, boss? I hope it is clear. Now moving on to our next question। आपके और में भी questions आते हैं एग्जाम में, तो उसी पैटर्न के हिसाब से we have given here additional paper question में भी ऐसा ही दिया है। So if 20 grams of salt is present in 220 grams of solution, calculate the concentration of solution। एक question। दूसरा बोला है state the properties of suspension given, give an example। मुझे फटाफट से ही बताओ, क्या आप पहले वाले की तरफ जाओगे या दूसरे वाले की तरफ? What will be your choice? आप कौन सा क्वेश्चन करना पसंद करोगे? अगर आपके पास ऐसा चॉइस आता है पेपर में, then which question you will prefer? First question or second question? I would love to know that। तो
पहले अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। वो कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन निकालना है और उसने आपको सोल्यूशन दे दिया, सॉल्ट मतलब सोल्यूट दे दिया, दोनों ग्राम ग्राम में है। अब क्योंकि दोनों ग्राम्स ग्राम्स में है, सो वी हैव टू फर्स्ट राइट द मॉलिक्यूलर द गिवन पार्ट। गिवन क्या क्या है? गिवन है 20 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, है ना। गिवन है 200 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ब्रैकेट में आप सॉल्वेंट एंड सोल्यूट लिख सकते हो, क्या क्या दे रखा है। नाउ यू विल गो एंड शो दी फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या दिखाओगे? मास बाय मास परसेंटेज। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन दिखाने के 3 मेथड्स आप लोग ने पढ़े, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें मास बाय मास परसेंटेज होगा, जिसमें लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट। कितना मास ऑफ सोल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं इन अ गिवन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, राइट। तो सोल्यूट का मेरे पास है 20 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन इज 200 इनटू 100। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी 10, तो कितना आएगा? हाँ, 20 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100। आर वी गेटिंग दिस? ओ 220 है। ओ अयो, आई एम सो सॉरी, इट्स 220। तो कटेगा नहीं। ओके, सो 220 अगर डिनोमिनेटर में है, ऊपर 10 है इनटू 100, सो देन यू विल गेट दिस एज अ आंसर 9.09%। ठीक है, ये वाली गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है। नेवर नेवर एवर कॉपी द रॉन्ग नंबर्स, रॉन्ग फिगर्स। तो हमने नीचे सोल्यूशन किसे लिखा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ना सोल्यूशन। सो ऑलरेडी हमें सोल्यूशन का मास गिवन था, तो हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, नो स्यापा एट ऑल। हमने डायरेक्टली उस फिगर को लिख दिया 220, ऊपर हमारे पास है 20, हमने कैंसिल करा एंड वी गेट 9.09%। अभी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देना है भाई, तुम सस्पेंशन का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। सीरियल्स इन मिल्क, सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर, मड इन वाटर एंड सो ऑन एंड ऑन। भाई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नाउ अगर हम लोग सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज की बात करें, स्टार्टिंग अप विद द साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इतने बड़े हैं कि कोई भी उनको नेकेड आइज से देख सकता है। सो पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज। दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, अनस्टेबल होते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बायोफिल्ट्रेशन टेक्निक। पार्टिकल जितने बड़े हैं वी कैन इजीली सेपरेट देम बायोफिल्ट्रेशन टेक्निक। सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जो कि आप लिखकर आ सकते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज याद है डू राइट इट डाउन, ठीक है, क्योंकि उसे कोई नंबर नहीं दिया है, तो जितनी प्रॉपर्टीज याद है सब लिख के आना। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, इट्स अ हेट्रोजीनियस, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000, कैन बी सीन विद नेकेड आई, स्कैटर बीम ऑफ लाइट, अनस्टेबल एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक। एंड मड इन वाटर है, आपकी मर्जी, आप कोई और सस्पेंशन का एग्जाम्पल दो, इट्स योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, with that lot of happiness we are now moving on to section D, which is 5 mark question. So देखते हैं how many of you can gain 5 marks। मुझे ज़रूर बताना अगर तुमने कोई झोलझाल करा है, कितने मार्क्स आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन में। चले करें, ओके, चाक दे फट्टे। मूविंग ऑन, यहाँ पे भी आपके पास और आएगा, यू विल गेट अ चॉइस इन 5 mark question also. Why do people perspire a lot on a hot humid day? गर्मी है, उमस है, चिप 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 वाली गर्मी और बहुत स्वेटिंग होती है, वी परस्पायर अ लॉट। तो ह्यूमन बॉडी क्यों परस्पायर करती है ऑन अ हॉट ह्यूमिड डे? सोच के देखो, बूझो तो जाने। बी पार्ट कहता है गिव 2 examples of diffusion, which is a very easy peasy question. C, give the temperature at which water exists in 2 different phases or states. ये बहुत important question है for your exam point of view, very important. और ये फॉर्म आपके पास 1 mark इन MCQ भी पूछ सकता है, whether in assertion reason or maybe in a normal MCQ question. So yeah, this is important. बताओ जी, why do people perspire a lot on a hot humid day? अब जब humidity होती है, पहली चीज़ तो अगर hot है, हम लोगों का बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी का जो मैकेनिज्म है, इट वर्क्स ऑन इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो जब हम लोग को स्वेटिंग होता है, इट कॉजेस कूलिंग,
अगर दिन बहुत बहुत गर्म है तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है, जिसके लिए वो स्वेट प्रोड्यूस करता है। स्वेट प्रोड्यूस होते ही इवेपोरेशन होगा एंड विच मेक्स बॉडी फील कूलर। सो ये मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का। नाउ वी perspire a lot, the reason behind it is क्योंकि ह्यूमिड डे के अंदर ऑलरेडी इतने वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में है, इट इज ऑलरेडी बीन ऑक्यूपाइड इन द एयर, तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग perspire करते हैं बिकॉज इट्स नॉट इवेपोरेटेड वेरी इजीली फ्रॉम आवर body. So we perspire a lot. That's humidity, because of humidity. Now give two examples of diffusion. गीली मिट्टी की खुशबू, डिफ्यूजन। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती की खुशबू, डिफ्यूजन। किचन से आने वाले गरम खाने की खुशबू, डिफ्यूजन। परफ्यूम, कोई आगे से निकला और परफ्यूम की खुशबू, डिफ्यूजन। राइट, देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन जो आप लोग दे सकते हो। सो एनी टू एग्जाम्पल, इन फैक्ट पानी के अंदर एटमॉस्फेरिक गैसेस का डिजॉल्व होना भी डिफ्यूजन होता है। Intermixing of particles. C. Give the temperature at which water exists at two different phases or states. अच्छा, मैं ग्राफ बना रही हूँ, देखो शायद कुछ याद आए आप लोगों को। टक टक टक, -2, 0, 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ याद आया? धुंधला धुंधला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब आपके इंटर कन्वर्जन हो रहा है एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ फेज, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो दो स्टेट एक साथ रहते हैं। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों साथ होंगे, बिकॉज ये चल रहा है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड और वेपर स्टेट एक साथ मिलते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जब हो रहे होते हैं तो लिक्विड भी होता है, उस समय वेपर्स भी होता है। सो कौन से टेम्परेचर पे वाटर एग्जिस्ट, वाटर की बात करें, एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। सो आंसर विल डेफिनेटली बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। एंड उसके साथ साथ आप फेजेस भी ज़रूर देना कि 0 पे सॉलिड से लिक्विड होता है, 100 पे लिक्विड से वेपर्स होता है। डन डन डन। ओके, नेक्स्ट और वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। बिल्कुल ठीक है। आप लोग पढ़ के आते हो कि अगर हम लोग स्टेट कन्वर्ट करते हैं, इंटर कन्वर्जन जब हम पढ़ते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, गैस अगेन टर्न्स टू लिक्विड एंड लिक्विड टर्न्स अगेन टू सॉलिड्स। आप लोग ने 2 हेडिंग्स के अंदर ये बात पढ़ी है, व्हाट आर द वेज, किस चीज़ की वजह से इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला बहुत है टू इंटर कन्वर्ट स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड पे कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को कूल करते हो तो वो लिक्विड में आएगा, और लिक्विड को अगर कूल करोगे तो वो सॉलिड में आएगा। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है टू इंटर कन्वर्ट वन स्टेट इनटू अनदर। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर कभी भी अकेले काम नहीं कर सकता, उसके साथ साथ हमें टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना पड़ता है इनवर्सली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिक्विफिकेशन करना है गैस का, ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा दें, इस गैस के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर हम लोग एक्सट्रीमली कम कर दें, सो दैट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये काम कैसे हुआ, हाउ डिड इट कन्वर्ट? क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ाया। लेकिन सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से यह काम नहीं चलता, अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करते तो ये कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं था। प्रेशर कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता फॉर इंटर कन्वर्टिंग, उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, आप लोग पहले हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करोगे। टेम्परेचर पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इंटर कन्वर्जन कैसे होगा,
फिर उसके बाद आप प्रेशर की बात करेंगे अलॉन्ग विद द टेम्परेचर. इंक्रीज प्रेशर, डिक्रीज टेम्परेचर, वी कैन इंटर कन्वर्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट. सो दैट्स अ लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस. एक्चुअली यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है. लिक्विफिकेशन के लिए एग्जाम्पल वी कैन गिव फॉर LPG एंड CNG एंड ऑल. दैट वुड बी अ बेटर एग्जाम्पल गाइज, आई एम सो सॉरी. लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस को लिक्विफाई करने के लिए LPG वाला एग्जाम्पल इज कूल. यहाँ पे हम लोग सब्लिमेशन एंड प्रेशर की अगर हम बात करें, सो फॉर दैट ड्राई आइस एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस एग्जाम्पल वुड बी बेटर. ठीक है ना? ओके. So let's see how we have written the answers. सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर्स की बात करते हैं. How we have to write. हॉट ह्यूमिड डे पे हीट की वजह से बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग, और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसका कूलिंग मैकेनिज्म होता है. जैसे हम स्वेट करते हैं इवेपोरेशन होगा, एंड दैट इवेपोरेशन causes cooling. But air cannot have more water molecules because it already has a sufficient amount of water content in air. Humidity की वजह से already water amount भरपूर है एयर के अंदर. So that's why therefore हम लोग स्वेट करते हैं and we perspire बहुत ज़्यादा ऑन अ चिप वाला जो दिन होता है. Now B, milk drops in water, perfume sprayed in a room and many more. जो तुम्हारी मर्जी हो डिफ्यूजन के लिए, other examples you can mention. बिल्कुल आप लोग अपने हिसाब से ink drops in water है ना, बहुत सारे examples है which you can use for diffusion. Temperature पूछ रहा था, at which two states and phases can exist. So 0 के ऊपर we can have solids and liquids, 100 degrees Celsius और water पर we can have liquids and gaseous state together. Now दूसरा वाला जो पार्ट था आपका, उसमें हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? As I told you, पहले आप हीटिंग करके टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पे you will show the change of state, है ना. तो अगर आप बोलो सॉलिड को हीट करें, that converts into liquid, liquid को हीट करेंगे, that will convert it into gas. तो सुनो भाई और बहनों, क्योंकि आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा. You have to give proper explanation in words. आपको स्टेटमेंट्स लिखकर अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा. सिर्फ इतना से लिख के आओगे 2 मार्क्स भी मिलना मुश्किल है. ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसको जस्टिफाई करो कि हाँ भाई 5 मार्क्स देने लायक होना चाहिए सामने वाला. तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमें पता है हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. आप कोई भी एक एग्जाम्पल लो कि हमने आइस क्यूब लिया, एक बीकर के अंदर हमने उसको हीट करा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर से हीट करा तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ. देन वापस से अगर हमने टेम्परेचर कम करा, इस केस में भी देयर वुड बी अ चेंज इन स्टेट बट इट वुड बी अ स्लोअर रेट. फिर उसके बाद आप एक एग्जाम्पल दो कि गैस को हमने कूल करा तो वो लिक्विड में हुआ, लिक्विड को हमने कूल करा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ. तीसरा आप प्रेशर की बात करो एंड प्रेशर को टेम्परेचर के साथ कनेक्ट करके चलना. ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई अ गैस और चेंज देम इनटू सॉलिड स्टेट. Change them into solid state. So that is where we took an example of carbon dioxide gas converting into a solid state. और इसको पूरा explain करके आना. 5 मार्क्स चाहिए है तो you have to earn it. You have to literally earn it. Clear है बॉस? कैसे मिलते हैं 5 मार्क्स? 2 लाइन नहीं लिखना है. यू हैव टू प्रॉपरली फ्रेम योर आंसर. अच्छे से अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करो, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड उनके हाथ से वो 5 मार्क्स फिसलने चाहिए, ऐसा आंसर हो. ओके जी, नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन E व्हिच इज योर 4 मार्क क्वेश्चन. सो रेडी है? क्या बोलती पब्लिक? आर यू रेडी? चलिए, रेडी, स्टेडी एंड पो. ओ तेरी, क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट इट्स वेरी सिंपल. चिंता मत करो, और है यहाँ पे. क्वेश्चन पढ़ते हैं. Carbon dioxide produced by the action of dilute hydrochloric acid on potassium hydrogen carbonate is moist, whereas that produced by heating potassium bicarbonate is dry. What would be the difference in composition of carbon dioxide in 2 cases? State the associated law. Bounce मार रहा है क्या? ये bounce मार रहा है. Okay, तो सुनो, यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन के बेसिस पे आपसे बात करी है. पहला उससे कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. प्रोड्यूस होगा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए प्रोडक्ट है. कैसे मिला? बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl
और किसके साथ रिएक्ट कराया, पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये फॉर्मूला बनाना आप लोगों को आता है। कैसे आता है, पोटाशियम के ऊपर K+1, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बाइकार्बोनेट आयन विच इज 1-। जब हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। HCl का फॉर्मूला बनाना नहीं आता आप लोगों को, बिल्कुल आता है। और उसने कहा कि जब ये दोनों रिएक्ट होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्ट होगा। मॉइस्ट क्यों होगा, इसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। तो जैसे ही ये रिएक्शन होगा, KCl निकलेगा, वाटर निकलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्योंकि यहाँ वाटर वेपर्स निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो जो गैस इवॉल्व होती है वो मॉइस्ट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज इवॉल्व्ड इज मॉइस्ट। लेकिन दूसरे ही क्वेश्चन में, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि अगर हम पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इन दैट केस वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ड्राई। एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, K2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब क्योंकि ये हमने हीट करा है, वी आर हीटिंग दिस कंटेंट, हमने इसको काफ़ी हीट करा है। इन दैट केस यहाँ पे हमें ड्राई फॉर्म मिल रहा है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दोनों रिएक्शन के कार्बन डाइऑक्साइड में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है, एंड प्लीज जस्टिफाई योर आंसर विद द एसोसिएटेड लॉ। तो भाई और बहनों, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? याद करो उन चोटी वाले अंकल को, जोसेफ प्राउस्ट को याद करो। जोसेफ प्राउस्ट के लॉ क्या था? उनका लॉ कहता था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर आप किसी केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो, कांस्टेंट होल नंबर रेशियो बाय मास। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहे मॉइस्ट हो या कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई हो, है तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ही ना, उनमें क्या चेंज होगा? कोई डिफरेंस नहीं है भाई, कॉम्पोजिशन में कतई ही कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये 1 एटम ऑफ कार्बन है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, बाय वॉल्यूम दोनों सेम रहेंगे, बाय मास 3:8 ये भी सेम रहेगा। तो कॉम्पोजिशन में दोनों ही रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। बाय विच लॉ वी हैव एसोसिएटेड? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक से समझ गए? समझ ला? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटॉमिक मास इज बेस्ड अपॉन रिलेटिव स्केल एंड अ मास ऑफ कार्बन 12 इज डिफाइंड एज 12 mu. So this is an exact number. ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी टाइम्स हेवियर इज 1 atom of carbon than 1 atom of oxygen? तो आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मासेस पढ़े थे कि एक एटम का मास निकालने के लिए उसके एवज में हमें दूसरे एटम को रिलेशन में रखना पड़ता है, इसलिए हम उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। एक एटम को हम रेफरेंस में रखते थे, एंड दैट वाज कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो कार्बन 12 के बेसिस पे हमने दूसरे एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करा था। तो कार्बन का जो मास है विच इज 12 U, ऑक्सीजन का मास निकल के आया था 16 U। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि दोनों के मास में कितना डिफरेंस है, कौन हेवियर है। सो हाउ मेनी टाइम्स इज 1 atom ऑफ कार्बन देन 1 atom ऑफ ऑक्सीजन? कार्बन का मास है 12 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास है 16, सो ये मुझे देगा 3/4। सो आई कैन से दैट इट इज 3/4 टाइम्स हेवियर देन ऑक्सीजन। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। तेरे की उससे ऑलरेडी आपको फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला देती एटॉमिसिटी निकालना तो भाई इज द इजीएस्ट जॉब, इजी पीजी चीजी स्क्वीजी। तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं फ्लोरीन के, एटॉमिसिटी होगी आपकी 2, ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी हुई 2, मतलब बोले तो डाई एटॉमिक। दूसरा है NO2, नाइट्रोजन का एक एटम,
ऑक्सीजन के 2 एटम, ओवरऑल हुआ 3, तो एटॉमिसिटी हुई 3 और इसे हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक। सिंपल है भाई और बहनों, एब्सोल्युटली सिंपल। सो यस, एटॉमिसिटी हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में, एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यू गेट योर आंसर। सिंपल, वेरी सिंपल। तो अब देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लोग ने लॉ बताया था, लॉ इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कैसे उसको एक्सप्लेन करा कि दोनों ही फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों के अंदर सेम रेशियो होता है। कॉम्पोजिशन इज 1:2, बाय मास देखो तो भी सेम है, बाय वॉल्यूम कॉम्पोजिशन देखो तो भी सेम आएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में उसने एटॉमिक मासेस पूछा था कि 1 एटम ऑफ कार्बन इज 12 बाय कितने एटम्स ऑफ मतलब एक एटम ऑफ ऑक्सीजन के मास से कितना हेवियर होगा। सो दैट विल बी 3-4 टाइम्स हेवियर देन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एंड देन वी हैव टॉक अबाउट एटॉमिसिटी, जहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिसिटी 2, डायटोमिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो एटॉमिसिटी 3। मुझे फटाफट से बताओ H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा, मुझे तो जाने। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एटॉमिसिटी कितना होता है, जल्दी से बताओ, फटाफट से कैलकुलेट करो। डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली कम डाउन एंड चेक। आंसर चाहिए, बाद में बताएंगे। H2SO4 2 H 1 S 4 O। अब तो कैलकुलेट कर लो भाई। Okay guys, so that was it from my side today. Do not forget to click the bell icon so you get more informational videos like this. और questions हम लोग solve करेंगे. That was the additional practice paper and we have many more other questions to solve. So you will find me on my Insta channel and you can join the Telegram group also for more videos, updates and आपको वहाँ पे PDFs भी मिलेंगे, notes भी मिलेंगे. So that was it from my side guys. This is me Rachita Sachdev was signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. फिर मिलेंगे चलते चलते. Bye. Take care.